Assalamu alaikum everyone. This is Haider Ali. Hope you all are doing good. So this video lecture is about the topic population. I know that some of you already have started this topic. Some of you have completed. Some of you are solving the past paper on this topic. But here today is the last attempt for the explanation and the key points and the very important chunks of this topic which I need to explain it to you today. So it's a request to every one of you sitting here in the class to stay very vigilant, to be very much focused, and open up your notebooks and start jotting down the important pointers when the lecture is going to be start. The following things you need to remember that please do not raise any sort of questions with the available instructors and TAs in the classroom at the moment. Please make sure that once you are done with the lecture and once you reach home, so you just write me up with the problems you faced during this lecture. I request every one of you listening to me here, that you must jot down the points during the lecture. And if you have any query, please write down it with you. And once you reach home, you just message me and I'll try my best to sort it out. All right. We are very much thankful to all the instructors here with you, or the TAs who is just helping us to carry out this lecture. So we are going to start up with this topic today, that is the population. I'm sharing the screens here with you. All right. So you people are quite aware that we started up with this topic population already, where we have studied about the birth rate. You people are very much aware of it. That is the number of live births per thousand individuals, and you know how to calculate this, right? We already studied about the death rate, that is number of deaths, or also known as the mortality rate, जो कि हमें डेमोग्राफिक मॉडल में भी नज़र आता है, राइट? उसके बाद हमने नेचुरल इंक्रीज को पढ़ा था, दैट इज अबाउट द बर्थ रेट minus the death rate. When the number of birth rate is high and the death rates are lower, so it will always be the natural increase. When the birth rate is lower than the death rate, there will be the natural decrease, right? ये भी हमने पढ़ा था, and we did the question onto it as well. तो नेचुरल इंक्रीज एक सिचुएशन है जहाँ पे birth rate exceed करती है than the death rates, and similarly natural decrease जो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे death rate exceeds करती है with the birth rate within the specific time, right? And इसमें हमने रीजंस भी किए थे कि हमारे पास जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में जो है क्यों इंक्रीज होता है, और पाकिस्तान में ये ज़्यादा हाई क्यों है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगेन, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स. दैट मीन्स के जो बच्चे पैदाइश के वक्त में मर जाते हैं विद इन द एज ऑफ एन ईयर, उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में शुमार करते हैं. एंड that is how you need to calculate is number of death infants over the live births multiply by 1000. तो ये हमारा IMR निकलता है, और उसके हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, क्योंकि हमारे पास स्टंटेड ग्रोथ का हमारे पास बहुत मसला है, हमारे पास मैल न्यूट्रिशन का मसला है कि मदर्स को अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती, स्पेशली टू द थर्ड पार्ट, जहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत इशू है. दूसरी चीज़, आप सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स, एंड देन द अवेयरनेस ऑफ द पीपल. फिर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, इंक्यूबेटर्स जहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं नर्सरीज के अंदर, हमारे पास वो नहीं है. तो there are number of factors which contributes in the infant mortality rate, and it was decreasing past because जब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी,
और उसमें इतने रूटीन्स चेकअप्स नहीं होते थे, पर अब हमारे पास आईएमआर में काफ़ी काफ़ी जो है वो कमी आई है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द मीडिया पीपल आर मच अवेयर कि अब उन्हें अब कहाँ जाना है, और अपने प्रॉपर डाइटरी प्लान्स का ख्याल, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल, बट दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरियाज, नॉट इन टू द रूरल एरियाज, बिकॉज रूरल एरियाज तो अभी हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन की क्राइसिस से ही नहीं निकल पा रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इतनी ब्रॉडकास्टिंग थ्रू द मीडिया एंड सोशल मीडिया तक वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रही है. तो द IMR is still rising over there, but we have having alhamdulillah much control into the urban areas like Karachi, Lahore, Islamabad, because people is are getting the awareness, अपने dietary plans को maintain कर रहे हैं, nutritions का ख्याल रख रहे हैं, हमारे पास सप्लाईज बढ़ रही हैं, देन लोगों को फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी मिल रही है, साथ साथ अवेयरनेस भी मिल रही है, तो पीपल आर मेकिंग देयर बेस्ट चॉइसेस. तो यूं हमारे पास IMR में थोड़ी कमी आ रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज फैक्टर्स. Okay, the very important point, and this is one of the pointer to evaluate your economic indicator, whether your country is developed or developing countries. So life expectancy is basically an average age of a number people is expected to live. You know that in Pakistan we do have the life expectancy about, or last time it was like around 58, now it's standing on 54, I believe. You must check it. और कि क्यों हमारी एज कम दिन बर दिन जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज एज कम यूं हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, हाइजीन का इशू है, द राइजिंग पोल्यूशन, देन हमारे पास अनहाइजीनिक कंडीशंस, लोग जो बाहर के खाने खाते हैं आपने देखा, फिर पीपल ओवर हियर नॉट वेरी मच conscious about their health and nutrition, and then हमारे पास availability of hospitals नहीं है, we do not have much tertiary care hospital. Even you see in Hyderabad or you move to आगे Nawab Shah and Sakkar, we do not have the tertiary care hospital like we do have in Karachi, so they are not much widespread. We do not have the availability of good doctors. तो इसलिए हम जो है हमारी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करती है इस चीज़ के. फिर दूसरे इलाकों में चले जाएंगे तो क्योंकि पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. कराची हैज इट्स ओन अदर प्रॉब्लम्स, Balochistan has its own other problems, KP is having own other problems. So these number of problems accumulatively combined up together, which is giving less age average of the life expectancy. So हम मोर्टालिटी, क्योंकि हमें निकालना ज़रूरी होता है कि हमारी एवरेज एज जो है वो जो इससे ऑब्वियसली डेथ रेट्स भी बढ़ रही हैं, तो हम हमारा एवरेज बंदा जो है वो उसकी डेथ जो है किस एज के अंदर हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर एज वेल के मेल एंड फीमेल. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर है. फिर हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी था कि it refers to how across the region, across the area, let's say if it is Balochistan, how the population is spread it, and you got the final uh, average of the population that we called as the further into the next slide I'm going to explain you कि आपको एरिया के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन डिवाइडेड है वो हमें पता चलता है. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट शो यू कि पॉपुलेशन कैसे स्प्रेड आउट है in terms of the density and the concentration. So moving to the next part is the population density, जिसमें मैं पिछली स्लाइड में बात कर रहा था. That is the total population divided by the area. So total population क्या है? It refers to the number of people एक region में जो रह रहे होते हैं. For example, if I say कि बलूचिस्तान में 100 people are living in per square kilometer, तो आप क्या करते हैं, जितनी भी आबादी होती है उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पर स्क्वायर किलोमीटर का एवरेज आ जाता है. अब let's say for instance के हमारे पास 100 people living in per square kilometer, and if you compare up that with the Karachi, you'll find out that 1,000 people are living in per square kilometer, so it is like 10 times more than of Balochistan. Why again?
देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस हियर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं ना कि बलूचिस्तान के क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वहाँ लो डेंसिटी पॉपुलेशन है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम चार तीन तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो हम उसको कहेंगे कि डेंसली पॉपुलेटेड, वी विल कॉल एज densely populated area. If the population is just like not very much high, not very much low, we'll say it is moderately populated area. If the population density is too low, so we will call it as a sparsely populated area. That means a low populated area, low density populated area, sparsely populated area like Balochistan or KP, with their factors obviously contributed, making the population distribution lower. So population density gives you the comparison of the different regions, different provinces across the Pakistan. जी जनाब, अब हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर। ये हमारे पास एग्जाम में फ्रीक्वेंट टाइम आता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमंस पॉपुलेशन की, जिसमें साइज, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ओवर द टाइम। आप देख रहे होंगे, यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट ऑन द स्क्रीन is of the birth rate indicated, and below is the death rate. If the birth rate is higher than the death rate, if the birth rate is higher than the death rate, ये लास्ट क्लास में हमने अभी स्लाइड में पढ़ा था, बर्थ रेट हाई होगी डेथ रेट से, इट इज ऑब्वियसली अ नेचुरल इंक्रीज. If the death rate is higher than the birth rate, it will be the natural decrease. तो आप स्टेज 2 में देख रहे हैं कि आपके पास कैसे नेचुरल इंक्रीज जो है वो राइज कर रहा है, राइट, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी वो इंक्रीज कर रही है टिल द स्टेज 4, राइट। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड द रीजंस ऑफ द डेथ रेट, और हम उसको दोबारा से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डेथ रेट हमारे पास क्यों है, क्यों इतना मसला है। बिकॉज अगेन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन नहीं है लोगों के पास, वैक्सीनेशंस का लोगों को पता ही नहीं है, हेल्थ केयर सेक्टर पाकिस्तान का बहुत निगलेक्ट हो रहा है। ये जो यू कैन सी द रीजन इन कराची लाइक नॉर्थ नाजनाबाद, गुलशन इकबाल, आजकल कितनी ट्रेंचेस ओपन हैं, इससे एक्सीडेंट के चांसेस तो है। साथ साथ व्हेन यू जस्ट ओपनिंग द रोड्स, यू आर जस्ट स्क्रैपिंग द रोड्स, यू जस्ट ओपन मेकिंग इट द ट्रेंचेस मोर देन ऑफ अ रोड्स, तो आपको नजर आ रहा है कि रिस्पिरेटरी इश्यूज कितने बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, मिट्टी इतनी ज्यादा है। तो हमारा डेथ रेट इसलिए रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजीजेस है। यू हैव सी द pandemic in 2020, 22 20 as well, where we have received the high all over the world. The death rate was quite high because of this pandemic, but again infectious diseases है, मलेरिया है, तो हमारे पास कुछ डिजीजेस की प्रिवेंशन ही नहीं है, हेल्थ केयर की सर्विसेज बहुत लिमिटेड हैं, हमारे इम्यून सिस्टम, क्योंकि हम फूड का इंटेक अच्छा नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू, वी डू नॉट हैव द प्रॉपर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फिर हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्रिएट करते हैं, आपके रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं डेथ रेट में। फिर अगेन इन पाकिस्तान द लिटरेसी रेट इज़ क्वाइट लो, जिसकी वजह से एजुकेशन के मसाइल और awareness के मसले, but with the social media is helping us a lot, because everyone from urban to rural areas are having the mobile phones, and with different social media applications they are having the videos and that short videos for the awareness कि क्या करना है क्या नहीं, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में कुछ टू सम एक्सटेंट इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो डेथ रेट हमारे पास अब जो है वो लोअर भी हो रहे हैं। तो इसका वाइसे वर्सा कर देंगे कि अगर हमारे पास लो डेथ रेट्स हैं तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, अच्छा हमने अल्ट्रासाउंड और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट्स खोल लिए हैं,
हमने सेल्फ मेडिकेशन बंद कर दी भाई, और हमने अब जो है डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर दिया। हम टेस्टिंग्स पे चले गए हैं, मेडिकल टेस्टिंग पे चले गए हैं, हम हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं, हम अपने डाइट्स पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम बेहतरीन जगह से एक्सपायरी डेट्स देख के दवाइयाँ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल्स हमारे कंपनीज हमारे पास बड़ी अच्छी हो गई हैं, और ड्रग्स मेडिसिन के प्राइसेस लो हो गए हैं। हमने जो है अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स बढ़ गए होंगे, तो इसी का ही वाइस वर्सा कर देंगे तो लो डेथ रेट आपके पास आ जाएगा। Okay, G, the reasons of the high birth rate has already been explained to every of your class, but again, I would like to carry out again so that आपको पता हो कि बर्थ रेट के जो है रीजंस क्या है, और पूरे पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर जो है वो सबको ये रीजंस बहुत अच्छे से पता होते हैं कि बर्थ रेट के पाकिस्तान के अंदर रीजंस जो है वो ज़्यादा क्यों हैं। The pointers are written in front of your screens as well, and almost around 80% you people are aware of it कि हमारे यहाँ जो है वो बर्थ रेट ज़्यादा हाई क्यों है। इवन विद दिस हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, people want to have the more children, that's for sure. Or basically in Pakistan, uh, the farmers believe that more children just more working hands on farms, and people encouraged to have the larger families, and people are having no awareness of having the large size family, the impact. The people are not aware of the impact of the large size family, and they do not plan, and some of the areas they do not even know what is the family planning programs, right? So the government of Pakistan is helping a lot, but again, due to the religious point of view, that it is not allowed in Islam, the family planning programs. And there's again uh, Islam do not encourage to have the restrictions on keeping up the larger families. Therefore, we do have the number of larger families here, and we do encourage to have the larger families because of the religious norms. एंड सो बट इकोनॉमिकली बहुत नुकसानात हैं जो कि हमने देखे हैं, और जो हम देखते हैं कि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हमारे पास। अब इसी को हम रिवर्स कर देंगे, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, पीपल आर वेरी मच पीपल आर यूजिंग द family planning program methods and the services into the rural areas. The Sabsetaras clinic and NGOs are helping a lot, or फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स अब एक्सेप्टेबल हो रहा है सोसाइटी के अंदर। लोगों को रियलाइज हो गया मोर चिल्ड्रन is having the economic crisis into the country and for the family as well. So people have a career job as well, so when they become educated, and then obviously the delayed marriages of the women is a huge topic to talk about, so let's move on further. तो रीजंस फॉर द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमारे पास जो है माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। हमारे पास रेफ्यूजीज आ रहे हैं, हम दूसरे मुल्क में जाके अजाइलम ले रहे हैं, और लार्ज फैमिलीज हैं, वॉर डिजास्टर्स इफेक्ट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मसले हैं। हम इस हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को ऐसे सिर्फ रोक सकते हैं कि अगर हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, और उसमें लोगों को जाके सर्विसेज दें जो उस प्रोसेस में उनको देनी होती हैं, कि उनको उनको उनकी काउंसलिंग्स करनी है, उनको अपने फैमिली साइजेस को उनकी रिसोर्सेज से कंपेयर करके उनका स्टैटिक्स डेटा, उनको फॉर्म्स देके कि आपकी इतनी इनकम है तो आपका पर बच्चा जो है वो इतना जो है वो चीज़ को करेगा। तो दिस वुड हेल्प देम टू गो फॉर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। फिर हम गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, फ्री एजुकेशन हो, बट पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन इतनी इंकरेज नहीं होती, स्पेशली इनटू द रूरल एरियाज। हमारे पास मेटर्नल केयर्स का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाए ताकि हमारा आईएमआर डिक्रीज होना शुरू हो जाए। हम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें, ताकि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दें, ताकि फ्यूअर चिल्ड्रन की किस तरीके से जो है वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं हो पाती है। हम वुमेन एम्पावरमेंट, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब काफ़ी हद तक बढ़ रही है, तो वो दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर टू रिड्यूस द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट in Pakistan. Now, I would like and request
the instructor or my tea in the class to please pause the video here right after this question. Please take the question, everyone. Please take the question, everyone. Explain the measures to reduce the high population growth rate in Pakistan. I repeat, explain the measures to reduce high population growth rate in Pakistan. Explain the measures to reduce the high population growth rate in Pakistan. You should develop your answer. Explain the measures to reduce high population growth rate in Pakistan. You should develop your answer. Now, please pause the video and give students at least 10 minutes to just complete up their answer. Once everyone is going to complete, then start the video again from here. All right, so start. Again, now we are going to start द पॉपुलेशन पिरामिड. पाकिस्तान में भाई पॉपुलेशन पिरामिड बनता है. आप देख रहे हैं फीमेल्स और मेल्स का बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है. 0 से लेके 14 जो है हमारे पास ये जो पॉपुलेशन है ये डिपेंडेंट है, राइट. ये यंगर डिपेंडेंट्स हैं बिकॉज दे कैन नॉट सीक द एम्प्लॉयमेंट, तो दे आर डिपेंडेंट. और यही हमारे पास यंग डिपेंडेंट्स आते हैं. 60 के बाद से आप एज देखें, रिटायरमेंट एज होती है. 60 के बाद से हमारे पास ओल्डर डिपेंडेंट्स आते हैं, यानी कि हमारे पास नीचे का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. और हमारे पास जो यंगर डिपेंडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. हाउएवर हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन का सेक्टर बड़ा है, बट अगेन हम देख रहे हैं कि हमारा जो ओल्डर डिपेंडेंट्स हैं वो रेशो बहुत कम प्रोपोर्शन है उनका. मगर हमारी जो डेथ रेट्स है वो इंक्रीज होती हुई आपको नज़र आ रही हैं. बिकॉज सिमिलरली राइट आफ्टर 70 to 74 how is the population pyramid is diminishing. और 90 के आसपास तो बहुत ही फ्यूअर, अराउंड कोई मिलियन तो उसकी तादाद भी बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रही. हमें जो एवरेज ज्यादातर डिमिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं वो 55 से लेके 70 तक में लोग ज्यादातर जाते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से बढ़ भी हमारे पास रहते हैं. तो पॉपुलेशन पिरामिड आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है. Young dependents 0 to 14, and then 15 to 60 is working population, then 60 to plus is your older dependents, right? तो ये एक स्ट्रक्चर शो कर रहा है मेल्स एंड फीमेल्स का डिफरेंट एज ग्रुप्स में. आप देख रहे हैं कि फैक्टर्स जो कि आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं. मैंने आपको बताया कि हर इलाके में डिफरेंट पॉपुलेशन है. जैसे आप बात करते हैं अगर जिन इलाके में जहाँ आपका डिफरेंट टेरेन मैंने लिखा है, जहाँ पे हाईलैंड्स हैं या लो पॉपुलेशन डेंसिटी है. अब जहाँ पे दुआब्स हैं, जहाँ एग्रीकल्चर है, जो फार्मलैंड है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ रोज़गार ज़्यादा है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी. अब नॉर्दर्न एरियाज के अगर आप हाई क्लाइमेट देखें, हाईलैंड्स और डेजर्ट के एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स है. तो आप देखोगे कि आपको किस तरीके से वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ क्वाइट लो देयर. जब जिन इलाकों में लो रेनफॉल है, बिल्कुल ही ड्राउट्स ड्राइनेस है, वहाँ भी पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली लो होती हैं. बट कोस्टल एरियाज में, इंडस प्लेन में, द पॉपुलेशन डेंसिटीज आर वेरी मच हायर. द एरियाज विच आर कवर्ड विद द वाटर सप्लाई, the areas which are covered with the barren land is having the low population density. The areas which are covered with the rivers, lakes, high Indus plain are having the high density of population. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? वो तो नेचुरल फैक्टर्स थे. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? इंडस प्लेन, क्योंकि आपके पास इंडस प्लेन पे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, रिलायबल पावर रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. M1 हो गया, मोटरवे 1 है, मोटरवे 2 है, मोटरवे M9 है, M5 है, और इंडस सुपर हाईवे है, इंडस इंडस हाईवे है, नेशनल हाईवे है,
आपके पास नंबर ऑफ रोड्स के मैंने अभी नाम लिए, तो ये एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अलावा उसके एयरलाइंस हैं। फिर आपके पास पावर सप्लाईज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कराची में पोर्ट फैसिलिटीज ऑल ओवर पाकिस्तान में है। नारायण कागान में आपके पास जो है वो रिलेटिवली पॉपुलेशन डेंसिटी हाई स्थिति, टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है। So there are number of factors which attracts the population density in Pakistan. So please write down two question here as well for two mark. Please write down the question. What are the political factors? What are the political factors making the area of high density population? What are the political factors? Two marks only. What are the political factors making the area high density of population? Two marks. Write down. And our next question. Describe the reasons. Describe the reasons of low density of population due to the economic factors. Describe describe the factors of low density of population due to the economic factors. Now, instructor or TA, please pause the video for 10 more minutes more so that the students could frame the answers. All right, start again. So the problems due to the high population density, आपको पता है ट्रैफिक कंजेशन, जॉब्स के मसाइल हैं, हेल्थ केयर पे प्रेशर है, और I, in my area, I do have the problem of water supply. We used to go for the वाटर टैंकर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ओवरबर्डन हो जाता है, और ऑब्वियसली हमारी वन ऑफ द इनकम्स का पार्ट जो है वो उसमें जा रहा है। तो हम जनरेटर यूज कर रहे हैं या सोलर पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, वो हम एक इनकम लिक्विड हाउसिंग ऑप्शंस है हमारे पास, एक की भी मसाइल है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बड़ा मसला है, बिकॉज द कॉज ऑफ एयर एंड वाटर लैंड पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट इतना बुरा हुआ है कराची में, जहाँ बजा हर जगह कचरे हैं, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसकी कंटेमिनेशन सर्विस ग्राउंड पे हो रही है, हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे पास ग्रीन बेल्ट्स ख़त्म हो गई हैं। अभी आपने देखा है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर कैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, अल्लाह जाने रेड लाइन ट्रेन बन रही है। वो पूरा ग्रीन स्पेसिंग एरिया था, ये जो हमारी ग्रीन लाइन बनाई ग्रीन स्पेसिंग एरिया था, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं रखा कि हम कहीं ग्रीन स्पेस बना दें। बट अगेन ग्रीन स्पेसेस नहीं है तो डिफॉरेस्ट्रेशन हमारे पास का मसाइल थे, और उससे हमारी ऑब्वियसली पोल्यूशन राइज कर रही है। हर जगह जाएं तो आप ओवर क्राउड नजर आता है, रोड्स पे भी रश नजर आएगा, आपको हॉस्पिटल्स में भी रश नजर आएगा। तो ये इससे आपको सर्विसेज नहीं मिल रही, और ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा राइज कर रही है, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास है, हमारे पास जॉब सीकर्स ज्यादा हैं, जॉब्स के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हैं, वाटर स्कैरसिटी के मसले हैं, सिटीज अब क्वाइट अनप्लान्ड बन रही हैं, एक्सटेंड तो हो रही हैं पॉपुलेशन की वजह से, बट कमर्शियल कंपनीज जो है वो ऐसी एक्टिविटीज कर रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, जो कि सिविल सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है। तो नंबर ऑफ यू विल सी थ्रू दिस कि आपको नंबर ऑफ रीजंस जो है वो नजर आएंगे। देन नाउ विल टॉक अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं। दो किस्म की माइग्रेशन होती है, एक इंटरनल माइग्रेशन होती है, जैसे आप मैं कराची से लाहौर चले गए, लाहौर से इस्लामाबाद आ गए, ये इंटरनल माइग्रेशन है। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो जोग्राफिकल बॉर्डर्स मूव कर रहा है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, या जैसे मैं अभी सऊदी अरब के अंदर हूँ तो मैं
इंटरनेशनल माइग्रेशन करके आया हूँ। इमिग्रेशन किसे कहते हैं? इमिग्रेशन, ई वाली इमिग्रेशन जो होती है फॉर हमारे रेजिडेंट्स की होती है, द पीपल ऑफ आवर कंट्री exit our country, the people of our country settled in abroad। यानी कि हमारे कितने सारे लोग जो पाकिस्तान से जा रहे हैं वो जो है अ, उसको हम ई वाला इमिग्रेशन कहते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उसको आई वाला इमिग्रेशन कहते हैं। देन देयर इज अ रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड द सीजनल माइग्रेशन, राइट? तो हम माइग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बाहर का कल्चर चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन चाहिए, हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वी डू गो फॉर द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। हम मैरिज एंड रिलेशंस के लिए मूव करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। हम रिटायरमेंट किसी अच्छी जगह पे जाते हैं कि रहें अच्छे क्लाइमेट में, हम इसलिए मूव करते हैं। हम अपना लाइफस्टाइल पे प्रेफरेंसेस देते हैं। हम फैमिली रीयूनिफिकेशन में सब अलग अलग होते हैं, तो हम एक जगह सब सारे मिलके फिर रहना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल रीजंस होते हैं कि भाई अगर मैं एक सियासी बंदा हूँ, मेरे लिए हालात अच्छे नहीं है, तो मैं दूसरी जगह जाऊँ, या मैं अगर एमएनए बन गया तो अब मेरी इस्लामाबाद मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कंट्रीब्यूटेड फॉर द माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्लीज टेक द क्वेश्चन, प्लीज टेक द क्वेश्चन। Rural urban migration, all the instructors in TA, please request to pause the video for next 15 minutes. Explain the reasons, explain the push factors, explain the push factors of rural areas. You're going to explain these factors, right? Explain the push factors of urban areas. Explain the push factors of rural areas. Explain the pull factors of urban areas. Explain the pull factors of urban areas. Right? सब चार चार मार्क के सवाल है. Please give them the 15 minutes and then start the video. Pause it here and then start the video. All right. So rural push factors आप लोग कर चुके होंगे. ठीक है जी. अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे. एम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो काम करना जिसका कंपनसेशन वेजेस मिल रहा है. जैसे हम काम करते हैं, आपके पेरेंट्स काम करते हैं, दे आर employed to the different institutions and to the business centers. Some of them are the self-employed, they are having their own businesses, so they are engaged in an activity where they got an exchange, they got the compensation on the wages. Unemployment, बेरोजगारी है, वो लोग जो कि employment opportunities को seek करना चाहते हैं but they are unable to find out the job opportunity, they are unemployment. अब आपके घर में आपके दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि कमा सकते हैं, पोटेंशियल है, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर द जॉब, तो दे आर नॉट गोइंग टू कम इनटू द सेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे क्योंकि दे आर द रिटायर्ड. अब वो जॉब्स नहीं देख रहे, कर तो सकते हैं पर अब वो जॉब्स नहीं सीख नहीं कर रहे. दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. जो कि एज 20 से लेके आपकी 60 तक है, और वो लोग अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो दे आर अनएम्प्लॉयमेंट. So individuals are employed in jobs that are inadequate or suboptimal in terms of their skills qualification. वो underemployment, यानी कि मेरी qualification बहुत ज़्यादा है. For example, मेरी qualification बहुत ज़्यादा है and I do have a good experience, but I'm working somewhere uh, like a waiter into a restaurant. So I'm underemployed. I can go and teach. I can I can, as relevant to my the education, I can choose that work. तो मैं अब मैं वेटर की जॉब कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट में आऊँगा, राइट? इस तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हिडन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर होती है. दैट मीन्स एक सिचुएशन जहाँ पे individuals appear to be employed but their work does not significantly contributed to the economy or redundant, इसको कह लें. इन अदर वर्ड्स यानी कि वो लोग जो कि अपनी स्किल्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आती है.
Causes of unemployment आपके पास हैं. Please take the question. Explain the causes. Explain the causes by looking to this slide. Write down the question. Explain the causes and solution for unemployment. तीन causes लिखें और तीन उसके solutions लिख लीजिए. Please stop the video here, pause the video here, and then continue after 10 minutes once the class is done with the task. Thank you. Yes, so you must have done the question. अब आ जाते हैं सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ. हर चीज़ का मैंने आपको पढ़ा है. सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ अब पढ़ रहे हैं हमने. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री पढ़ा है, सस्टेनेबल फार्मिंग पढ़ा है, तो सस्टेनेबल फिशिंग पढ़ा है. अभी सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ये रेफर करती है टू अ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज दैट कैन बी मेंटेन हार्मिंग द वेल बीइंग ऑफ द करंट फ्यूचर जनरेशन. यानी कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल, इसको सिंपल आप ऐसे कह लें कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे करें कि आपकी दीगर चीज़ें रिसोर्सेस मेंटेन्ड हो जाएं. रिसोर्सेस क्या है? आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे हो कि आपके पास एरिया भी हो, आपके पास जॉब्स भी अच्छी हो उनके लिए हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, और तमाम सारी रिसोर्सेज जो उनके लिए मेरिट गुड्स है, वो जो उनको चाहिए हैं, जो हमें चाहिए है, वो अवेलेबल, उस लिहाज से पॉपुलेशन ग्रोथ हो. इफ यू डू हैव अ गुड एरिया, इफ यू हैव अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इफ योर कंट्री इज मच सिविलाइज्ड, they having a proper sanitation, they having good medical facilities and all that, तो उनके लिए फिर आप उस लिहाज से विद दैट रेट आप पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं. तो in this way sustainable population can be achieved, right? Thank you very much everyone. Have a nice day, and please make sure that you are going to solve the question I am just giving to you right in this lecture. The question is uh, you need to solve May June 2024 question number 4. Question number 4, that must be in your volume 2, May June 2024 question number 4. You must take it out from the internet. May June 2004, May June 2024 question number 4. ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन. इसका आप सब PDF बनाएंगे कैम स्कैनर से. Do not copy the question, just give it the answer and then send it to me on the WhatsApp group. Thank you everyone. Thank you my TAs and the substitute teacher in the class. Thank you so very much. Allah Hafiz.